Hello friends, I hope there are 45 around 45 students in this meeting. I welcome you all for the first lecture. Please tell me that you are able to see me, my video in a corner, as well as you are able to hear my voice clearly. Please raise your hands so that I will start. So Siddhi Mehta has shown she is able to listen me. Shivani Dhake, Shreyas Rane. Okay. Okay, welcome friends. So I will start. Uh, Today I will not talk about directly on the syllabus content points. I will just try to introduce what is AI. Almost everyone knows what is AI, what is the importance of AI in our life. We know that, and we know as we know, we are computer people, IT people, software people. So we must learn this subject with very. So we must create an interest in this subject because there are many other domains. See, AI is a very big and broad domain. It is very hard to capture that. But there is one another domain that is called as a machine learning or deep learning or uh, that. So it is a part of AI. Many of you might have heard about the words like, see, there are many jargons. Don't worry about the jargons like big data and all that. Or so So AI will be a good beginning in that area, and it is not. For example, if you take the India in terms of the software development or application development, you will find that at least till today, there are very few companies who are building the products, software products, uh, which are based on AI. Uh, I don't want to say almost all, but there are many companies who take something called as a contract or outsourcing. They work, for example, Infosys is there, TCS is there. So their most revenue, 90% revenue is generated from the orders, outsource orders from USA, Australia, or some other countries. But in-house in India, we don't build. means it is very means actually it is a very sad thing that our companies do not build software for our people, our institutions. For example, government, railway, airlines, or maybe Tahsil office. We are not building our own software products which are working on AI technology. We are still using the traditional approaches to build the software. For example, inventory management, or you might have heard about the ERP. See, uh, you should write in your copy. You should keep one copy with you while in lectures, at least in AI, and you should write some terms like ERP. So you should know the long form of that, enterprise resource planning. How many of you heard about ERP? Can anyone talk? What is ERP? हेलो तनिष्का, पाखी है क्या आपके क्लास में? पाखी, पाखी जी, यस सर। बताइए आपने ईआरपी नाम सुना है कभी? ईआरपी नाम का वर्ड सुना है? नो सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। ईआरपी इज अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे आपने सुना होगा, बड़े बड़े कंपनियां रहती है, जैसे आपने नवनीत का किताब पढ़ते हैं, आप नोटबुक रहता है, लॉन्ग बुक, उसकी कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी। या फिर कोई ऑटोमेशन कंपनी है जैसे बजाज ऑटो, राइट? तो ये कंपनी में लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, असेंबली लाइन होती है, बहुत सारा ऑटोमेशन है वहाँ पे। व्हीकल को पेंटिंग भी रोबोट करता है, राइट? और रॉ मटेरियल की भी चीज़ रहती है जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं हम, स्टोर। तो तो वैसे टाइप के कंपनी को ऑटोमाइज करने के लिए, मतलब ऑटोमेशन करने के लिए
हमको ERP सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। जैसे आपने कभी सैप नाम सुना है, SAP सैप, तो ये जर्मन प्रोडक्ट है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे JD एडवर्ड के प्रोडक्ट है। तो ये जो बड़ी कंपनियां रहती है, जैसे ऑयल कंपनी IOCL या BPL, तो उनका पूरा मतलब एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग, उनका प्रमोशन से लेकर तो रॉ मटेरियल परचेस करना वेंडर से, बाद में कस्टमर्स के उनको ऑर्डर आते हैं, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना। मान लो दिवाली है, इफ इज अ दिवाली और क्रिसमस ओकेजन, तो कंपनीज को नॉर्चरली उस मंथ में ज़्यादा ऑर्डर्स आती है, तो दे हैव टू वर्क इन शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट और वट एवर मल्टीपल शिफ्ट्स। तो उनको कस्टमर के ऑर्डर्स के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्शन का रेट बढ़ाना पड़ता है। तो उनके स्टोर में रॉ मटेरियल रहता है, नट बोल्ट स्क्रू वट एवर, तो दे हैव टू ट्रैक दैट कि भाई कितने स्क्रू बचे हैं, कितना ये मटेरियल है, वो मटेरियल है, इसमें हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूनिट्स बना सकते हैं। और उसके हिसाब से उनको अपने वेंडर जो रहते हैं, उनके सप्लायर जो रहते हैं, उनके हिसाब से उनको ऑर्डर देना पड़ता है। वेन यू ऑर्डर समथिंग इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि आपका सप्लायर जो है वो दूसरे सिटी में रहता है, उसको डिलीवरी करने में माल, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल बोलते हैं हम, उसको सप्लाई करने में टाइम लगता है। अगर हम लोग ERP यूज करते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, अपने पूरे कंपनी का सैलरी से लेकर तो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, तो ERP क्या करता है, वो हर चीज़ को ट्रैक करता है। एम्प्लॉय कितने हैं, छुट्टी भी कितने हैं, शिफ्ट में कितने हैं, बाद में एक आधा काम बढ़ाना है तो यू मे हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉइज ऑन दैट जॉब। बराबर है कि नहीं? अगर आपको एक आधा काम फास्ट करना है, एक काम को नॉर्मली 8 दिन लगते हैं, 4 लोग 8 दिन में एक काम करते हैं, आपको अगर उसको 2 ही दिन में करना है तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे वो काम करने के लिए। सिंपल बात है। तो ERP क्या करता है, जो भी कंपनी रहती है या ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसको प्रॉम्प्टिंग करता है इंटेलिजेंटली कि भाई आपका रॉ मटेरियल खलास हो गया, आप ऑर्डर कीजिए, आपके नट बोल्ट खत्म हो गए, पेंट खत्म, पेंट के डब बॉक्सेस खत्म हो गए, आप बुला लीजिए, लाइक दैट। अगर हमारे पास में स्टोर मीन्स गोदाम, अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल सफिशिएंट नंबर में है तो हम लोग अच्छे रेट में, डबल रेट में हम प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर बढ़ा सकते हैं, अगर रॉ मटेरियल है तो। अगर समझो आप मैन्युअली ये काम करेंगे, कंपनियां बहुत बड़ी होती है, हजारों स्क्वायर फुट, स्क्वायर माइल्स, मतलब फुट्स का उनका ये रहता है, गोदाम रहता है, प्लांट रहता है, उसमें मतलब ऑटोमेशन रहता है। तो वो सब मैनेज करने के लिए हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। गाड़ी में या कोई पुर्जे में ऑयलिंग करना पड़ता है, स्क्रू टाइट करना पड़ता है, एक आधी चीज़ बैटरी पे चलती है, राइट? जैसे आपका लैपटॉप चलता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, मतलब यू हैव टू ट्रैक ऑल द रॉ मटेरियल। आई एम नॉट टेकिंग एनी टिपिकल एग्जाम्पल, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको सीजन में, मान लो दिवाली सीजन है या फिर क्रिसमस सीजन है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको आपको चेक करना पड़ता है कि मेरे पास में रॉ मटेरियल कितना है, ये रॉ मटेरियल में मैं कितने यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकता हूँ। बराबर है? तो ERP उसके लिए यूज करते हैं। आज के डेट में, नाउ टुडे, ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड कंपनीज, इवन मेरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम तहसील टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दे आर यूजिंग ERP फॉर देयर वर्क। तो ERP सिंपली मतलब एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग, उसका प्रमोशन, उसका सैलरी, उसकी छुट्टियाँ, यही नहीं कैलकुलेट करती। ERP क्या करता है, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड एवरीथिंग, इवन आपको कोई ऑर्डर मिला आपके कस्टमर से, आपने उसको सेंड कर दिया, भेज दिया आपने। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो उनको ऑर्डर ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये वगैरह सब सब ये सब ERP से करते हैं। यू कैन नॉट यूज कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर टू हैंडल द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिंपली एक ही पार्ट है, बिजनेस डजेंट मीन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो एक पार्ट है, बट
You have to handle about HR, means human manpower, employee, labor, managers, all that. Lot many managers works in a particular factory. Lot many levels are there. Every person has different job, domain, area he has to work. So ERP tracks everything and it manages. It automatically gives prompt to the end user. जो भी सॉफ्टवेयर यूज करता है ERP का, अगर आप कॉलेज में आते हैं, मान लो फेस टू फेस चालू होता है हमारा क्लासेस, तो आप क्या कीजिए, डेटा सेंटर में जाइए, बाद में अपना HGIRC का बिल्डिंग है, वहाँ पे ERP है अपने यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड SAP, तो आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में ERP, बाद में SAP, उसका लॉन्ग फॉर्म ढूंढिए आप, व्हाट इज SAP. तो SAP इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट which is used for building the ERP. जैसे मैंने आपको बताया, there is one more product that is called as a JD Edward. तो उसमें भी हम ERP डिजाइन कर सकते हैं. देखिए, ऐसा नहीं रहता कि भाई आप बोलेंगे मुझे जावा आती है या C आता है या फिर पाइथन आती है, तो यू कैनॉट बिल्ड अ ERP थ्रू ओनली लैंग्वेज, राइट. आपको कोई तो भी टूल किट या कोई तो भी फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है ERP डिजाइन करने के लिए. क्यों? ERP में सिंपली एक चीज नहीं थी, जैसे मैंने आपको कहा, सिंपली अकाउंटिंग नहीं रहता, उसमें स्टोर मैनेजमेंट रहता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मटेरियल मैनेजमेंट रहता है, फाइनेंस मैनेजमेंट रहता है. तो यू हैव टू यूज सम फ्रेमवर्क. अगर हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ERP का, तो हम लोग उस सिस्टम आसानी से कम समय में बना सकते हैं. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 minute, there is one phone. तो सॉरी, तो आप लोग ERP बना सकते हैं सिंपली बाय नोइंग वन लैंग्वेज और टू लैंग्वेजेस, और सिंपली बाय नोइंग द डेटाबेस लाइक Oracle और MySQL. यू कैन नॉट बिल्ड ERP, यू नीड समथिंग मोर देन दैट. तो ये ERP नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम AI का यूज कर सकते हैं. आप मुझे सुन रहे हैं ना? मतलब आई थिंक यू आर एबल टू लिसन मी, यू आर एबल टू सी माई PPT. So anyway, I will just go to another PPT because we want to see what is there in AI. So today's agenda is just I am going to give you general introduction, syllabus points, and textbook and reference books. So try to understand what is difference in textbook and reference book. जो भी आपका textbook है, that is very standard textbook. It is used in almost all universities all over the world. That is from Stanford, आपने सुना होगा शायद नाम, MIT, Yale University is there, then Berkeley University is there. Lot many universities are there in foreign, America, India, and all that. So they are using this book as a textbook. So there are certain reference books. So I suggest that don't go for reference books, but if you are, or if you want to build your okay, ये PPT गया लगता शायद. So I think आप लोग PPT देख नहीं सकते क्या? तो फिर से उसको ऑन करता हूँ. हाँ सर, नहीं है विजिबल PPT. ठीक है, उसको आप लाता हूँ, पता नहीं क्या होगा. तो अभी आप पाखी जी ने बात किया था क्या? पाखी जी मुजमेर. Yes sir. हेलो. हाँ, थैंक यू. Yes sir, I am Pakhi. थैंक्स फॉर पोस्टिंग. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इधर बात करते हैं अंधेरे में, और उधर हमको पता नहीं है उधर के साइड में क्या होता है. तो इट इज बेस्ट वे इज दैट आई सजेस्ट यू
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने फ़ोन में उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फ़ोन में या डेस्कटॉप में, या आप उसका प्रिंट स्क्रीन करके एक ऑप्शन है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, यू हैव टू प्रेस शिफ्ट शिफ्ट की और प्रिंट स्क्रीन, तो उससे आपका वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा और आप मुझे व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजते जाइए। सो अभी फ़िलहाल तो मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, मतलब जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो आई विल बी देयर, बट यू सेंड ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप, तो उससे मुझे पता तो चलेगा कि भाई बाहर उधर आपके साइड में, आपके एंड में क्या प्रॉब्लम है करके। तो एनीवे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। और क्या कीजिए कि आपका टेक्स्ट बुक बहुत ही सफिशिएंट है, एज आई टोल्ड यू, ये बर्कले से लेकर तो स्टैनफोर्ड तक यही बुक यूज़ किया जाता है। इवन इफ यू सर्च प्रॉपरली ऑन गूगल, यू विल गेट द लेक्चर्स ऑफ दिस पीपल, MIT पीपल। MIT का एक साइट है, मैं आपको बता दूंगा, OCW, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, OCW, ओपन कोर्स वेयर, ओपन कोर्स वेयर, O फॉर ओपन, W फॉर वेयर, C फॉर कोर्स एंड W फॉर वेयर। तो इसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोग्रामिंग कोड्स मिलेंगे, बाद में बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत ही बड़े ऊंचे दर्जे के प्रोफेसर्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे आपको एक इंसाइट होगा। और फर्स्ट बात तो ये है, लेट मी टेल यू दैट दिस, यू आर इन सेकंड ईयर, सो दिस सब्जेक्ट इज अ इंट्रोडक्टरी लेवल टू यू, फंडामेंटल लेवल। सो सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड सम algorithms, लेकिन हमको सिर्फ उसका फंडामेंटल जानना है। देर इज नो प्रैक्टिकल फॉर दिस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि nowadays code is available everywhere. If you search properly, you will get a code, maybe in Java or C or C++ or maybe in Python from net. So what I suggest is that whenever there is some algorithm, you try to get the code from net, Google, you search it and just run it. Why? Because you will understand in more comfortable way how that algorithm works. सिंपली algorithm के बारे में मैं ऐसा बताऊँ कि branch, divide and conquer, branch and bound and greedy algorithm, so that will not give you proper insight in learning. और आपको तो कोड लिखना ही नहीं है, आजकल तो गूगल बाबा है और यूट्यूब बाबा है। तो बाय रनिंग कोड यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स। तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि इफ़ यू डू इट मीन्स बाय रनिंग कोड, आप बहुत अच्छी तरह से एल्गोरिथम समझ सकते हैं। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर सब्जेक्ट, एग्जाम आती है वही प्रिपेयर करो, तो आपको ये नहीं आएगा। और कोड लिखने का है ही नहीं, आपको सिंपली कॉपी करने का है, रन करने का है प्रॉपर इन्वायरमेंट में। हम मेरे ख्याल से आप लोगों को जावा और पाइथन अभी आता ही होगा शायद थोड़ा बहुत। एनीवे, तो textbook is sufficient, but still there are some reference books. If you get a chance, you can go through those books. और दूसरी एक बात है कि ये जो टेक्स्ट बुक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 25 27। तो आपको सब चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली 6 or 7 चैप्टर्स आर देयर which are relevant to your syllabus, not complete chapters, only some part of those chapters. So I will be floating information about the sections, means 2.1 2.3 means matlab you have to read that, only that section. You don't need to read about 2.3, only read 2.1. तो आपको उतना ही पार्ट पढ़ना है, बिकॉज दैट बुक इज वेरी स्टैंडर्ड एंड दैट बुक इज डिजाइन फ्रॉम UG एंड PG पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको सिर्फ रिलीवेंट चैप्टर ही पढ़िए आप। तो ये है। नाउ I will not talk about what is in unit number 1, but I just want to say that in unit 1 we are going to understand what is the AI, we are going to understand what is the history. अब AI का जो डेवलपमेंट है ये 1940 1935 के आसपास में ही चालू हुआ था। लोगों के दिमाग में जो फिलोसोफर्स होते हैं, सी कोई भी इन्वेंशन कोई टीचर नहीं करता, कोई भी इन्वेंशन कोई साइंटिस्ट भी नहीं करता। साइंटिस्ट कौन करते हैं? फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स जो लोग होते हैं, आपको पता होगा शायद, तत्वज्ञ, मतलब प्लेटो, अरिस्टोटल, ये लोग क्या करते हैं कि कहीं तो भी उनके एक वर्ड कॉइन कर लेते हैं। टू कॉइन अ वर्ड मतलब कोई एक कंसेप्ट
निकाल के ऐसे डाल देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कि भाई ऑटोमेटिकली मशीन काम करेगी, ऐसा टाइप का उनका कंसेप्ट रहता। तो 1935 या मे बी जो भी है साल, उसमें वो टिपिकल टर्म बोलो या वर्ड बोलो या एखादा टर्म क्वाइन, जिसको बोलते हैं क्वाइन करना, मतलब आपको पता है चिटपट करते ना हम, टॉस, तो वैसे टाइप एक वर्ड फेंक देते हैं और उसके साथ में कंसेप्ट फेंक देते हैं, और बाद में बाकी के लोग हैं, टीचर्स, प्रोफेसर, बाकी कम्युनिटी है, उसके वर्ड के ऊपर में आसपास में थिंकिंग करना चालू करते हैं, और इस तरीके से वो वर्ड रिफाइन होता है और फिर आइडियाज क्लियर होती है, बाद में एक एक डोमेन बन जाता है नया, जैसे बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे वगैरह वैसे टाइप का। ये है जैसे पहले CS था, फिर IT आया, लाइक दैट। तो वैसे आता है। तो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ AI। बाद में इसके हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स हुए, मतलब किसने किसने पहली पहली बार पर्टिकुलर चीज़ किया, हम उसका देखेंगे फ्रॉम टाइम स्केल, मतलब 1940 में किसने क्या किया, 1980 में किसने क्या किया, लाइक दैट। तो फर्स्ट unit is a very very introductory, and from exam point of view, you know, that will be easy. You don't need to, but what I suggest is that you try to get the uh, original textbook. अभी तो आपके पास में बुक नहीं होगा, आप लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, लेकिन आई विल बी पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन FTP। कॉलेज का FTP सर्वर है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा HTTP रहता, वहाँ के उसके ऊपर में मैं बुक्स, नोट्स, सम कोड और कुछ वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, मेरे खुद के वीडियो लेक्चर्स और दूसरे भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जो वेल नोन पर्सन लोग हैं, रिनॉन पर्सन है, उन प्रोफेसर्स के मैं लेक्चर्स FTP पे रखते जाऊंगा। इवन आई हैव हैबिट, अगर आप मुझे CM मानकर, माय नेम इज चंद्रशेखर मानकर, अगर आप CM मानकर ऐसा करके यूट्यूब में सर्च करते हैं तो यू विल गेट माय चैनल, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स, 40 लेक्चर्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिट वाइज। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं बाद में। बट आई वांट टू सजेस्ट दैट कि भाई सिंपली टेक्स्ट बुक का भी काफ़ी नहीं होगा, यू नीड सम वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज सम टेक्स्ट मटेरियल फ्रॉम नेट। सो जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना जो कॉलेज का वेबसाइट है CSE डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर मैं रखते जाऊँगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं FTP का IP एड्रेस। आज तो मैंने आपको, आज तो नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना, तो आई विल बी गिविंग IP एड्रेस URL फॉर आवर कॉलेज FTP सर्वर। तो ये एक्सक्लूसिव है, सिंपली SGNC के लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं कर सकते। तो एनीवे, वी शैल लर्न अबाउट द AI introduction, history and all that in first unit. Then in second unit, we shall learn about the concept of the algorithm. अब देखिए, आपको पता है कि what is algorithm? Algorithm is nothing but it is a set of steps to solve a particular problem. So it may be your problem might be to uh, prepare a 1 cup tea or coffee. So you require some set of steps to prepare a good coffee or good tea. So in that, in unit number 2, we shall learn what is algorithm and what is the algorithm for solving the problems. So, and we shall learn the different names of the algorithms available for AI. Because see, there are different domains, like computer network is there, system software is there, or compiler is there, AI is there, DBMS is there. So lot many domains are there. So for all different domains, different algorithms are there. But there are some algorithms which can work in all the domains. And there are some algorithms which work in specific domain, like कंप्यूटर नेटवर्क या राउटिंग, तो उसके एल्गोरिथम फिक्स है, वो नेटवर्क में ही यूज किए जाएंगे। यू कैन नॉट यूज दो एल्गोरिथम्स इन योर जनरल पर्पस नीड्स। सेम इज देयर। तो AI के बहुत सारे एल्गोरिथम
स्पेसिफिक टू एआई डोमेन रहते हैं इंटेलिजेंस के लिए, लाइक मैपिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह. तो वी शैल लर्न अबाउट द नेम्स ऑफ द algorithms, टाइप्स ऑफ द algorithms एंड उसका इंट्रोडक्शन रहेगा यूनिट नंबर 2 में. सिंपली we are not going to learn about how to write the algorithm, AI algorithm. Please note this thing. This subject is not for learning how to write the AI algorithm. It is only for understanding what are different AI algorithms available up till now, up to this date. Or we should be able to compare the algorithms in terms of their performance कि भाई ये algorithm अच्छा है, वो अच्छा है, इसमें एक limitation है, इसमें ये plus point है या इसमें एक advantage है, like that. In terms of accuracy, मतलब ये algorithm का result accurate रहता है, 90% accurate, 45% accurate, 30% accurate, like that. So we are going to understand correctness or accuracy related things in unit number 2. So definitely I will be putting all my PPTs on the FTP site. You can download, or even I will be able to I will circulate them in our class WhatsApp group. But maybe after second week, not from first week. First week is only for understanding the things. So majorly we are going to understand what are the nature of AI problems, because there are different problems. So we must understand what is a AI problem. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कार है, कोई मुझे बताएगा कि भाई जैसे किसको, यश दलाल जी आप सुन रहे मुझे? यश, हेलो. तेजस्विनी राखोंडे आएगा? हेलो तेजस्विनी. शंकर शिंदे. अरे सौरभ केदार. अरे कोई भी नहीं गया? यस सर, यस सर. हाँ, कौन कौन बोल रहा है? सर सौरभ केदार. सौरभ, धन्यवाद सौरभ Yes, sir. फॉर आन्सरिंग. तुमच्याजवळ मोटरसायकल कोणची आहे किंवा कार कोणची आहे तुमच्या घरी? असं विचारत आहे. स्प्लेंडर. स्प्लेंडर. स्प्लेंडर वगैरे. हां ठीक आहे. समजा सपोज यू वॉन्ट टू नो की भाई व्हॉट इज अ पेट्रोल consumption. If you run your bike at the speed of 80 kilometers per hour, then what is the consumption of petrol, rate of consumption? And if you are more than 100, means 120 kilometers per hour, then what is the consumption of petrol? So suppose this is a problem, we want to know that कि भाई हमको पता है कि हर स्पीड पे एक ही टाइप का पेट्रोल कंजम्पशन नहीं आएगा. अगर आप स्लो चलाएंगे तो आपका एवरेज कम रहेगा. आप एक मॉडरेट स्पीड से चलाएंगे, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको एक मॉडरेट एवरेज मिलेगा गाड़ी का पेट्रोल कंजम्पशन का. लेकिन 80 के ऊपर में जाएंगे तो अलग रहेगा, 110 या 120 के ऊपर में जाएंगे तो अलग रहेगा. राइट नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच प्रॉब्लम इज अ एआई. तो हर प्रॉब्लम को एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होते हैं. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स like deciding a train or whatever, or arrival of a train or airplane in a right time, ये वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं. और इसको थर्ड पैरामीटर्स, मतलब जैसे एनवायरमेंट, रेन या एयर स्पीड या ह्यूमिडिटी, बहुत सारे कंस्ट्रेंट या पैरामीटर रहते हैं जो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर में मतलब अफेक्ट कर सकते हैं. तो so there are problems and there are some parameters, and depending on that we have to decide कि भाई हम इसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं ये प्रॉब्लम को. सी यू कैन नॉट मेक एवरी प्रॉब्लम एज अ एआई टाइप प्रॉब्लम. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन यूनिट नंबर 2 कि भाई एआई कौन से प्रॉब्लम को हम एआई प्रॉब्लम बोले. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मोटर बाइक का पेट्रोल कंजम्पशन का, तो वी कैन नॉट से दैट कि दिस इज अ एआई प्रॉब्लम और एआई डोमेन का प्रॉब्लम है करके.
like that. So that we are going to understand. So simply that theory or that concept is there in unit number 2. So it is not mathematical, or nobody will ask you the questions in that unit, may say in a university exam or that thing. Anyway, now in unit number 3, so right now I know that in second year or maybe in first year also, you might have learned about the different search and sort techniques. लेकिन वो बहुत प्रिलिमिनरी है, मतलब बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक थे. तो एआई में बहुत बार सर्चिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है. सो देर आर मेनी मेथड्स, वी शैल गो थ्रू यूनिट नंबर 3. तो उसको अनइन्फॉर्म सर्च बोलते हैं. राइट नाउ टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनइन्फॉर्म. इन्फॉर्म मीन्स यू नो, इन्फॉर्म. अनइन्फॉर्म मीन्स निगेशन ऑफ, नेगेटिव ऑफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अनइन्फॉर्म स्ट्रैटेजीज में 4, 5, 6 एल्गोरिथम्स है, वो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे. फोर्थ यूनिट में उसका निगेटिव मतलब इन्फॉर्म सर्च में देखेंगे हम कि व्हाट इज दैट. तो जैसे मतलब एक ह्यूरिस्टिक नाम का एक कंसेप्ट है, ह्यूरिस्टिक. तो जिसको हम बोलते हैं ना इंट्यूशन. जैसे भाई मुझे लगा था कि भाई आज बारिश होगी इसलिए मैं छाता लेके आया. बहुत बार लोगों को ऐसा एक इंस्टिंक्ट रहता है. सो इट इज़ नॉट मतलब कि भाई ये नहीं है वो कि भाई अंधश्रद्धा टाइप का कुछ चीज कि भाई कौवा मेरे सामने से गया या बिल्ली मेरे सामने से गई करके. बट समटाइम्स वी यूज ह्यूरिस्टिक्स. उसको अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते, लेकिन वी हैव सर्टन थिंग्स इन आवर माइंड और इन आवर इनसाइड अस, एंड विल टेक गुड डिसीजन और प्रॉपर डिसीजन. जैसे मतलब पानी की बोतल लेके जाना अगर आप बाहर जा रहे कहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे पानी अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन बट यूर इनसाइड वॉट एवर इज देयर मीन्स यू योर सेल्फ, वी आर इनसाइड अस, इट टेल्स अस अरे नहीं भाई जा रहे तो छाता लेके जाओ, मतलब छतरी लेके जाओ, तो बारिश आ सकती है. लाइक तो समटाइम्स दैट थिंग हैपेंस. उसको ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं. तो देर आर सम कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम लाइक ह्यूरिस्टिक सर्च, नॉलेज बेस्ट फिट सर्च, प्रॉब्लम रिडक्शन और जो भी है. तो 3-4 algorithms are there, actually more than that, 7-8 algorithms are there that we are learning in unit number 4. तो उसको ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं. इसका मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स स्ट्रेटेजीज. एनीवे, तो भी एक सेकंड लास्ट यूनिट है. तो इसमें एडवांस्ड सर्च मतलब आपको पता चलेगा कि भाई इन आउट ऑफ 6 यूनिट्स 4 यूनिट जो है आपके अब सब सर्च ही कर रहे हैं. अब देखिए, ऐसा मत सोचिए कि एआई मतलब सिर्फ सर्चिंग ही है. एआई इज नॉट सर्चिंग, बट वी हैव टू लर्न सर्चिंग एल्गोरिथम्स टू अंडरस्टैंड एआई इन बेटर वे. तो 6 यूनिट में से आपके 4 यूनिट सिंपली सर्च पे है, शॉर्ट पे भी नहीं है, सर्च पे है. लेकिन आपने जो सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या जहाँ जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कहीं, तो उनका जो अपना थिंकिंग का जो आपका कंसेप्ट रहता वो अलग था. लेकिन वाइल लर्निंग ये सब्जेक्ट, हम लोग सर्च नाम का जो चीज़ है, सर्च नाम का जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं. सर्चिंग, इट इज़ नॉट सिंपली सर्चिंग सम आइटम फ्रॉम अ रैंडम सेट ऑफ आइटम्स, ऐसा नहीं रहता. तो देर आर सम टेक्निक्स, और उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स एंड अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक्स. तो उसमें गेम वगैरह भी आता है. तो गेम आपको पता ही है, आप लोग गेम खेलते भी होंगे, कार रेसिंग वगैरह नहीं, बट चेस वगैरह टाइप के गेम्स है, या टिकटॉक टो करके एक गेम आता है. तो जिसमें गेम में विनर वगैरह टाइप की चीज़ें रहती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सरियल सर्च. So actually these are the searching algorithms, searching techniques are there. So that we are going to learn in unit number 5. And lastly, so ये बहुत ही important chapter है. This is the original chapter. यहाँ पे से AI चालू होता है. So here we are learning about what is knowledge.
So we are going to understand, see, knowledge, information, and data. Write down in your copy. Data, comma, knowledge, comma, information, and try to get definition for it. So if I ask you what is data, so you should have 2-3 line definition with you. Definitely, I will be giving you definitions of all these key terms, like what is knowledge, what is data, and what is information. So you should have definition of these terms, as well as you should have a clear idea. Crystal clear मतलब आपको पता है कि वो अंगूठी रहती है हीरे की, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, टोपाज या कोहिनूर, आपने सुना होगा। या आपका जो नमक है, नमक का एक दाना या शुगर का एक दाना, उसको भी हम क्रिस्टल बोलते हैं। एंड यू हैव लर्न केमिस्ट्री, तो यू शुड हैव क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट डिस्टिंक्शन कि भाई डेटा मीन्स व्हाट और इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। नॉलेज मतलब क्या और इंफॉर्मेशन मतलब क्या, उसमें उसका डेफिनेशन आना चाहिए आपको, और उसमें डिफरेंस क्या है ये आपको आना चाहिए। यू शुड हैव दैट थिंग, एंड डोंट वेट फॉर अ डेफिनेशन फ्रॉम सम टीचर और सम बुक. You can use Google or YouTube and try to get that information. अगर आपके पास में फाउंडेशनल theoretical फाउंडेशन जिसको बोलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल TOC इज दैट सब्जेक्ट, theoretical कंप्यूटर साइंस, तो हमको कंसेप्ट के बारे में अगर अच्छा पता रहा तो हम उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि भाई लास्ट यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and it is a real AI. We are going to understand what is knowledge engineering. So that is there. See, computer science and engineering is a stream, right? Software engineering is a stream. It is a domain. ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या IT इंजीनियर है मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नहीं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कुछ चीज़ें लगती है, वो बनने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, और कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि इफ यू डोंट हैव दैट थिंग्स विथ यू, तो आपका डिग्री उसके लिए कैपेबल नहीं रहेगा। आप यू हैव टू टेक समथिंग, यू हैव टू ऐड समथिंग इन योर सेल्फ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये एक जनरलाइज टर्म है, इट इज अ डोमेन, इट इज एरिया। तो एखादी लैंग्वेज आना, सी आना, पास्कल आना या पाइथन आना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लक्षण नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इटसेल्फ अ डिसिप्लिन। देयर आर सम टर्म्स यू विल लर्न इन फाइनल ईयर और मे बी इन थर्ड ईयर। तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जैसे सिविल का आर्किटेक्चर होता है, राइट? तो वो डिजाइन करता है अगर, लेकिन सिविल इंजीनियर का काम अलग रहता है, राइट? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि सिविल इंजीनियर को ये समझता है कि भाई रोड में गिट्टी कितनी होना, सीमेंट कितना होना, रेती कितना डालना, पानी कितना डालना, ये चीज़ है। लेकिन आर्किटेक्चर जो रहता है वो अलग रहता है। तो आर्किटेक्चर को सिविल का भी नॉलेज होना, और उसका जो आर्किटेक्चर मतलब उसका जो ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स जो है, जैसे आपने फिबोनाची नंबर या ये वगैरह, या जैसा आपने देखा राष्ट्रपति भवन जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया है, या फिर कोई बुद्धिस्ट लेनियाँ देखते होंगे आप, जैसे औरंगाबाद में है या फिर दौलताबाद में कैलाश लेनी वगैरह है। लेनी मतलब गुफा रहती है, उसमें हमारे 2000 साल पहले, 3000 साल पहले कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में रूम्स बनाए हैं, कुछ पोर्ट्रेट चित्र बनाए हैं, और पत्थर के ऊपर में कुछ नक्शी का काम किया है, डिज़ाइन किया है। तो एक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है, जैसे मुगल आर्किटेक्चर, जैसे आपने कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, तो एक टिपिकल है। तो ऐसे टाइप का एक ग्रीक आर्किटेक्चर रहता है, जैसे रोमान ग्रीक, आपने कभी देखा होगा शायद नेट पे या पिक्चर में, इंग्लिश मूवीज़ में। तो सिविल इंजीनियर होने के लिए होना अलग चीज़ है, एखादे टिपिकल आर्किटेक्चर का ये होना के लिए, उसका स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा लगती है।
सिविल इंजीनियर बन गए तो आप आर्किटेक्चर नहीं बन सकते। मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ इंटीरियर डेकोरेशन, तो डेकोरेशन के स्पेशल कोर्सेस है एमटेक के, एम डिज़ाइन करके, MDES IIT में है वो, आपको गेट देना पड़ता है उसके लिए। तो इंटीरियर डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो आपने एक आधा जगवार की कार है, जगवार आपने कभी देखा होगा शायद उसका चित्र, या फिर पोर्शी करके है, या मर्सिडीज कार का इंटीरियर, या रोल्स रॉयस कार का इंटीरियर, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। यू नीड समथिंग मोर देन दैट, you need some kind of mathematics also, even chemistry also, because lot many things are there which are related with the leather and all that. तो वैसी बात है। तो anyway, at the end of the 6th unit or during the first 2, 3, 4, 5 and 6 unit, we are going to understand what is AI, what is the importance of AI, और AI भी आज के डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है, और AI एग्जैक्टली क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करने का, ये जो चीज़ें हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव प्रैक्टिकल्स, तो इसलिए मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया कि हम लोग मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, एक आधा URL वगैरह देते जाऊँगा आपको कि जहाँ से भी आप ये फलाना को डाउनलोड करो और डायरेक्टली उसको रन करो। आई विल बी टेलिंग यू how to run that code, because you need some environment, for example Java runtime environment, or maybe Anaconda or something to run some Python related code, or even you can use C or C++ like language. But AI algorithms implement करने के लिए कुछ typical languages है, आपने सुना होगा शायद Prolog, write down in your copy Prolog, PROLOG, और एक दूसरी लैंग्वेज है LISP, तो राइट डाउन इन योर कॉपी एंड जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन। सो एवरी लैंग्वेज, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, पास्कल, C, असेंबली लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज सम फीचर्स। तो आप टिपिकल टाइप के ही कोडिंग उसमें कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करना है, मान लो डिवाइस ड्राइवर लिखना है, तो यू शुड नो C, यू शुड नो असेंबली लैंग्वेज। आप सिस्टम प्रोग्रामिंग जावा में करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जावा इज अ वेरी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसका परफॉर्मेंस वगैरह आपको बराबर नहीं मिलेगा। बट इफ यू राइट अ सिस्टम प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर्स और समथिंग OS रिलेटेड, सपोज यू वांट टू राइट योर ओन OS, if you write it in C and some mix of the assembly language, then your OS or device driver will work very efficiently. तो कोई कहीं भी कोई भी लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते। तो इन सेम वे देयर आर basically more than two languages, like Prolog is there and Lisp is there. Lisp means लिस्ट इंस्ट्रक्शन। सी, ये प्रोलॉग का भी एक लॉन्ग फॉर्म है, और LISP नाम का एक लैंग्वेज है, उसका भी एक लॉन्ग फॉर्म है। आप उसको सर्च कीजिए, पता कीजिए कि ये क्या है, और ये भी सर्च कीजिए कि AI एल्गोरिथम से कौन से लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पाइथन आती है तो आई कैन डू एवरीथिंग इन पाइथन, ऐसा नहीं रहता। सो एवरी एरिया, एवरी डोमेन, एवरी टेक्नोलॉजी हैज सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। So anyway, that we are going to learn in a unit number 6, means मतलब नॉलेज क्या होता है, नॉलेज कैसे मिलता है, हाउ वी एक्वायर नॉलेज, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज को स्टोर कैसे करते हैं। सी, डेटा को स्टोर करना अलग चीज़ है, डेटाबेस टेबल रहता है आपका। अब डेटाबेस में भी बहुत सारे टाइप है, रिलेशनल डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, लाइक आपने सुना होगा शायद MongoDB वगैरह वगैरह। तो नॉलेज को भी हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज को ऐसा नहीं कि भाई लाया डाल दिया, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू समथिंग, some kind of thing like structure, or structure means what? So it is some kind of data structure type thing, and you have to store that knowledge. मतलब जब आपको काम पड़ता है, when you want to access it, you should be able to access it, मतलब जिसको हम क्यूरी बोलते हैं, SQL, कि हाउ टू स्टोर नॉलेज एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज, जो काम का है। जैसे मतलब एक क्वेश्चन है कि भाई विदर्भ एक्सप्रेस
शेगांव में राइट टाइम पहुंच रही है क्या, or will it reach on right time? This is your question. So we call this as a query. And you have database. तो रेलवे के पास में डेटा है, डेटाबेस है, सेंट्रल रेलवे के पास में. They know the current position of the Vidarbha Express. They know the distance between Shegaon and that current position, like that, and we can estimate. So we are going to understand what is the knowledge, how to store knowledge, and how to extract knowledge, how to query the knowledge. Query matlab it is a standard term. How to means it is question कि भाई शेगांव में विदर्भ एक्सप्रेस राइट टाइम आने वाली है क्या. दिस इज अ क्वेश्चन. सो हाउ टू क्यूरी द सिस्टम. सिस्टम मतलब जो तुम्हारा जो भी सिस्टम है और जो भी सॉफ्टवेयर है, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू दैट सॉफ्टवेयर. तो क्यूरी भी कैसे लिखने का, क्यूरी को भी, क्यूरी इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज. एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज. उसमें भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जैसे एसक्यूएल है, PL1 है करके, PL1 करके एक लैंग्वेज है, PL/1. So this is one language. So we are going to understand how to represent the knowledge, how to store the knowledge, how to get the knowledge, how to store the knowledge, how to organize the knowledge in the database or secondary storage or maybe in your hard disk, how to manage the knowledge. तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज. तो इसी को हम लोग नॉलेज इंजीनियरिंग कहते हैं. इट इज अ नॉलेज इंजीनियरिंग. सो वंस यू नो what is the difference in data, what is the difference in information, and what is the difference in knowledge, so then you will understand this thing in more better way. तो जैसे मैंने आपको कहा कि every time in at least in my lecture you should keep one notebook with you, और जो भी मैं आपको टर्म बताता हूँ you keep writing on those. I don't want to say that you take notes on of my lectures, but you write the terms in your copy, and immediately after lecture you can Google it, you can YouTube it, and you will get the information. So in this way, this is the best way to learn things. Now I am going to end here. Sorry, I have not told anything about the AI. I have just introduced from my point of view, but I suggest anyone can ask me any question. Even you can put your questions in your that chat box, or you can send questions on my personal WhatsApp. I don't know whether you know my phone number or WhatsApp number or whatever, but I will be there in your group after a few hours. Then you can send questions on my personal WhatsApp. So these are the books. I will talk about the books in next session. So there is only one book written by Stuart Russell and Peter Norvig. So they are very famous personalities. They are professors, और उनका पियर्सन एडिशन का आपको किताब मिल जाएगा. Even I am keeping this PDF, latest PDF on a FTP site. I will be giving you URL. You can download it anytime. ये हमारे कॉलेज का रिसोर्स रहेगा. And rest of the other books are there, like 4 reference books are there. So try to go through it. At least what I suggest, don't read the books. What you read only preface. You know, when any author writes some book, there is a 1 or 2 pages are there. We call it as a acknowledgement or something. So the person who writes, he works in that area for 10 years, 15 years or whatever. So लेकिन वो 2 पेजेस में प्रीफेस में उसका पूरा नॉलेज का ये है, जो भी है क्रक्स है, वो लिखता है उसमें. If you read that carefully 2 or 3 times, then you will understand the philosophy that why he is writing that book, why he thinks that this is important. देखिए, मैंने आपको बोला कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में आप विश्वास मत करो. You read the preface, the person who is writing that book, and you will understand कि भाई नहीं, इसमें का ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फलाना फलाना चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट. और बाद में फिर आप बाकी चैप्टर्स पढ़िए. डोंट रीड द चैप्टर्स लाइक ग्रीडी पर्सन कि भाई
चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं, उससे कुछ नहीं आने वाला. If you read the preface, then you will understand the philosophy. Once you understand the philosophy, then you will understand what is the intention, and then you can explore the chapters in that phase. So this is my suggestion. So friends, I will end here. Thank you for listening me, but keep asking me questions time to time. So I will end here. Thank you.